So good morning to all of you and welcome back again our lecture Balarav Science College Savner online classes for BSc semester 1. Myself Mr. C.T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Balarav Science College Savner. So dear students, we are going to discuss the semester 1 paper 2 having the name Fungi, Plant Pathology, Lichens, Bryophyta and Mushroom Cultivation. It consists of total 4 units. Out of these 4 units, we are going to discuss the first unit, and this first unit it is the part of the fungi. Then the general characteristics of fungi, which we have discussed in the yesterday's lecture. Later on, we have discussed the hyphae in mycelium, and we are just at the topic, which is the part of the ultrastructure of फंगल सेल. ठीक है, तो फंगल सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे. The ultra structure of fungal cell shows the close similarities with those of eukaryotic cells. जैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसी तरह फंगल सेल्स भी अपना स्ट्रक्चर शो करती है. यूकैरियोटिक सेल्स मींस व्हाट? द सेल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. जिस सेल के पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है ऐसी सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ऑब्वियसली अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है या फिर उस सेल के पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है तो वो सेल जो होती है द सेल इट इज फुल्ली डेवलप्ड. ठीक है. देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल. फंगल सेल के बारे में अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे. द फंगल सेल इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल. ठीक है, फंगल सेल जो होती है वो सेल वॉल से सराउंड की जाती है. इट इज मेड अप ऑफ द माइक्रोफिब्रिलर यूनिट्स. देन केमिकली द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन. The cell wall of fungi is made up of the fungal cellulose or chitin. The cell wall follows the plasmolemma. Okay, cell wall it follows the plasmolemma is like the plasma membrane in case of the normal cell. It regulates the movement of solute substances into and out of the hypha. Plasmolemma आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सुना होगा कि that it is semi permeable membrane. एक semi permeable membrane होती है नॉर्मल सेल के केस में. उसी तरह फंगल सेल के पास में प्लाज्मोलेमा होता है एंड दिस प्लाज्मोलेमा इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट. राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में भी वही होता है. इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. देन द लेमासोम्स एंड प्लाज्मोलेमासोम्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द सेल वॉल ऑफ प्लाज्मोलेमा. यानी यहाँ पे कुछ कंटेंट्स के नाम दिए इन लोगों ने, दैट इज लेमासोम्स एंड प्लाज्मोलेमासोम्स. सो दिस लेमासोम्स एंड प्लाज्मोलेमासोम्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मोलेमा. ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मोलेमा के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं ऐसा इन्होंने बताया. दैट इज लेमासोम्स एंड प्लाज्मोलेमासोम्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मोलेमा. Then the cytoplasm, the cytoplasmic material of the fungi, that the cytoplasm contain the cytoplasmic organelles and the cytoplasmic inclusions. जो cytoplasm होता है fungi के केस में इसमें cytoplasmic organelles होती है. Cytoplasmic organelles, for example, the endoplasmic reticulum, then ribosomes, Golgi complex, nucleus, vacuoles, etc. So these contents are present in case of the cytoplasm of the fungal cell. जो fungal cell होती है उसके cytoplasm में हमें ये content वहाँ पे मिलते हैं. The cytoplasmic organelles in the fungal cell include the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, dictyosomes, vesicles, microtubules, and microbodies. All these contents are present in case of the fungal cell. जो fungal cell होती है वहाँ पे ये सभी content वहाँ पे present होते हैं. Cytoplasmic inclusions includes the vacuole, oil globules, glycogen granules, etc. यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के साथ साथ यानी ये जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, वेसिकल्स, इनके साथ ही वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट along with these different cytoplasmic inclusions. Then the plastids and the starch grains are totally absent. Now what is this plastids? Plastids it is related with the chloroplast. ठीक है, ये chloroplast से related होता है
आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा. तो क्लोरोप्लास्ट दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. सो इन केस ऑफ द फंजाई के केस में यहाँ पे प्लास्टिड्स जो होते हैं, तो प्लास्टिड्स आर एंड स्टार्च ग्रेन्स आर टोटली एब्सेंट. प्लास्टिड्स और स्टार्च जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं बिकॉज इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. Some reddish violet pigments are reported from the cells of Cercospora kikuch, called as the Neocercosporin. यानी कुछ रेड वायलेट कलर के पिगमेंट्स रिपोर्ट किए गए थे या फिर मिले होते हैं. दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द जीनस ऑफ द फंजाई, दैट इज अ सर्कोस्पोरा. सर्कोस्पोरा के एक जीनस से रेडिश वायलेट पिगमेंट मिलते हैं और उसको नाम दिया गया है दैट इज अ न्यू सर्कोस्पोरिन. उसको न्यू सर्कोस्पोरिन करके नाम दिया उस पिगमेंट को. बट दिस पिगमेंट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. The cells are uninucleate or multinucleate. यानी फंजाई के केस में जो सेल्स होती है, the cells it may be uninucleate or the multinucleate. Then the nuclei are either globose or ellipsoid. न्यूक्लियाई जो रहेंगे फंजाई के केस में ये ग्लोबोज यानी ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर या फिर इलिप्सॉइड यानी ट्विस्टेड फॉर्म में हो सकते हैं. न्यूक्लियस हैज पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो रहेगा उसके केस में पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगी. मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर वॉल लेयर जो रहेंगी न्यूक्लियस की तो उसमें कुछ पोर्स रहेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. इट कंटेन्स द न्यूक्लियोलस consisting of the DNA and a distinct chromatid strands which becomes organized into the chromosomes at the time of cell division. DNA acts as a genetic material. So in case of the fungi there is a presence of DNA. So this is the diagrammatic representation of ultrastructure of fungal cell. तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है that write in note on the ultrastructure of fungal cell that you have to draw this diagram, show some labelings like for example the nucleosomes, endoplasmic reticulum, lipid body, mitochondria, cytoplasmic vesicles, cell wall, then vacuoles, nucleus, ribosomes, microbody. So all this content you have to show in your theory paper. If there was a question that there will be a question that write a note on ultrastructure of fungal cell. अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा ultrastructure of fungal cell के बारे में. So this is all about the ultrastructure of fungal cell. Now come to the mode of nutrition. ठीक है, mode of nutrition के बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे. The fungi are non-chlorophyllous eukaryotic organism. Fungi जो होती है वो non-chlorophyllous eukaryotic organism होती है. They are unable to synthesize their own food, hence their mode of nutrition is heterotrophic. वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं इसलिए उनको heterotrophic mode of nutrition फॉलो करना पड़ता है. They always remain dependent for their food on the living host or the dead organic matter. उनको हमेशा फूड मटेरियल मिलाने के लिए, ठीक है ना, फूड मटेरियल लेने के लिए किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो लिविंग हो या फिर डेड हो, उस पर डिपेंड होना होता है. Most of the fungi obtain the organic food by the process of absorption, while the few fungi of lower groups take in by ingestion. ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है. कुछ ही ऐसी फंजाई होती है कि जो इंजेक्शन फॉलो करती है. फंजाई में भी पैरासिटिक फंजाई जो होती है पैरासिटिक हो सकती है. हाइपर पैरासिटिक मैंने आपको समझाया था, द पैरासाइट व्हिच डिपेंड अपॉन अनदर पैरासाइट्स. अगर कोई एक पैरासाइट है जो दूसरे पैरासाइट पे डिपेंड होता है तो उसे हम हाइपर पैरासाइट कहेंगे. देन सैप्रोफिटिक मींस एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक इन नेचर. सिम्बायोटिक मतलब the two different organisms living in association. The best example of this symbiotic fungi that is the lichens. Both the parasites and the saprophytes may be obligate. ठीक है, यानी क्या हो सकता है कि पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट जो होते हैं वो ऑब्लिगेट हो सकते हैं. ऑब्लिगेट दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और फैकल्टेटिव दैट इज पार्शियल डिपेंडेंट. Now the types of fungi on the basis of their mode of nutrition. यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे फंजाई के टाइप्स इन्होंने यहाँ पे किए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. ठीक है, फंजाई के अलग अलग टाइप्स होते हैं यहाँ पे. दैट इज पैरासाइट्स,
देन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे पैरासाइट्स। द फंजाई ऑब्टेन देयर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग होस्ट आर कॉल्ड एज द पैरासाइट्स। ठीक है, फंजाई जो होती है, द फंजाई ऑब्टेनिंग देयर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग होस्ट आर कॉल्ड एज द पैरासाइट्स। यानी अगर किसी लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फंजाई तो उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। द लिविंग होस्ट में बी अ प्लांट, लिविंग होस्ट जो होता है वो तो प्लांट हो सकते हैं, इट मे बी अ एनिमल और इट मे बी अ अदर पैरासाइट। ठीक है, so the living host may be plants, animals or the other parasites. They are harmful to their host and caused many serious diseases such as rust, spots, mildews, etc. ठीक है, so the living host may be a plant. Living host क्या हो सकता है? It may be a plant, it may be an animal or other parasite. They are harmful to their host and cause many serious diseases such as rust, smuts, mildew, etc. Rust के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। अगर नहीं दिखाया होगा तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग अल्ब्यूगो, देन पक्सिनिया, सर्कोस्पोरा के बारे में जब पढ़ेंगे, related to the albugo, poccinia and the cercospora, we'll take a look regarding this rust, smuts and the mildew. अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अगर कभी बाय चांस खेत में वगैरह गए होंगे तो ज्वार या फिर मेज का जो प्लांट होता है उसको ग्रीन कलर के उसके लीफ होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, इलोंगेटेड लीव्स होते हैं। उन लीव्स के सरफेस पे कुछ रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर अभी शुगर केन आएगा, ठीक है, शुगर केन के सरफेस पे भी कुछ रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दीज स्पॉट्स आर नथिंग बट द स्पोर्स ऑफ द रस्ट। ठीक है, ये रस्ट के स्पोर्स होते हैं, rust, smuts, mildew, etc. Their mode of life is parasitic. Then the relation between the host and the parasite is called as a parasitism. होस्ट और पैरासाइट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक नाम दिया इन लोगों ने, पैरासिटिज्म। अल्ब्यूगो कैंडिडा, इट इज अ कॉमन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द क्रूसीफेरस प्लांट causing the white rust disease of crucifer. अल्ब्यूगो कैंडिडा मतलब एक जीनस है ये फंजाई की जो हमें थियरी में भी पढ़नी है एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी पढ़नी है। अल्ब्यूगो कैंडिडा इज अ कॉमन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द क्रूसीफेरस प्लांट causing the white rust disease of crucifer. तो हम लोग व्हाइट रस्ट डिसीज ऑफ क्रूसीफर। नाउ व्हाट इज दिस क्रूसीफेरस प्लांट? आप लोगों ने राई के प्लांट के बारे में सुना होगा, सरसों के जो प्लांट होते हैं, तो सरसों के प्लांट के जो लीफ होते हैं उस लीफ पे ये अल्ब्यूगो कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है। अल्ब्यूगो कैंडिडा इज वन ऑफ द जीनस ऑफ फंजाई की जो हमें डिस्कस करनी है डिटेल में, द लाइफ साइकिल ऑफ अल्ब्यूगो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्ब्यूगो कैंडिडा is a common obligate parasite of the cruciferous plant causing the white rust disease of crucifer. Now the types of parasites. अभी पहले हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ फंजाई जो अलग अलग टाइप्स में होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी ली पैरासाइट्स। अभी पैरासाइट्स की भी टाइप्स है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड द फैकल्टेटिव पैरासाइट। What is this obligate parasites? या obligate parasites क्या होते हैं? They only survive on the living host. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि दैट व्हाट इज पैरासाइट पता होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है ये पता नहीं होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट दे ओनली सर्वाइव ऑन द लिविंग होस्ट, दे टोटली डिपेंड्स ऑन द लिविंग organism or the living host for the food material. They cannot be grown upon the dead organic material. They cannot be cultured on artificial media, for example the Poccinia, albugo, etc. कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं कि वो सिर्फ लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कहा है यहाँ पे कि फंजाई इट मे बी ग्रो ऑन द लिविंग होस्ट और द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और द डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरासाइट बताए हैं इन लोगों ने कि ये सिर्फ लिविंग होस्ट पे ही, यानी कुछ ऐसी फंजाई भी होती है कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होती है या फिर ग्रो होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पॉक्सिनिया एंड अल्ब्यूगो, इसके बारे में भी हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, द लाइफ साइकिल ऑफ पॉक्सिनिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ अल्ब्यूगो। ये दोनों आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेंगे,
लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ अल्बुगो। सेक्शन लेना पड़ता है आपको पक्सिनिया का और अल्बुगो का। Then the facultative parasites, अभी facultative parasites के बारे में देखेंगे। They survive on a living host, but in certain conditions or in the absence of living host, they may grow on the other substrates also. ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये ग्रो होंगे। ये लिविंग होस्ट अगर अवेलेबल होता है तो अच्छी बात है, उस पर भी ग्रो होंगे। और अगर इन केस लिविंग होस्ट अवेलेबल नहीं होता है या फिर उन्हें फूड मटेरियल नहीं मिलता है तो वो फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी ग्रो हो सकते हैं। दे आर पार्शियली डिपेंड्स ऑन द लिविंग होस्ट फॉर द फूड। They can be cultured on the artificial media in the laboratory, for example, the Fusarium, Alternaria, etc. Now, what is this hyperparasite? What about this hyperparasite? The group of parasites, parasitic fungi obtain their food from the other parasites are called as a hyperparasite. मैंने आपको पहले ही बताया कि hyperparasites, hyper मतलब extra level, advanced level पे चले जाएंगे ये parasites। तो पैरासाइट्स जो होते हैं, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे अगर डिपेंड होता है तो ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग हाइपर पैरासाइट्स कहेंगे। द पैरासाइट्स बिकम द होस्ट फॉर द हाइपर पैरासाइट्स, यानी एक पैरासाइट होस्ट का काम करेंगे और दूसरा पैरासाइट उस पर डिपेंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्लेरोशिया ऑफ द स्क्लेरोटिनिया स्पीसीज आर अटैक्ड बाय द फंगस कॉनिथायरियम मिनिमेटस। ठीक है, कॉनिथायरियम मिनिमेटस नाम की फंगस है। ठीक है, तो इस फंगस अटैक करती है किस पे, स्क्लेरोशिया स्पीसीज पे। सो दिस इज द केस ऑफ हाइपर पैरासाइट, या हाइपर पैरासाइट के केस में होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टू दिस हाइपर पैरासाइट दैट इज द सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स के बारे में देखेंगे हम लोग, दैट व्हाट इज दिस सैप्रोफाइट्स। द फंजाई ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल और देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द डेड and decaying residues of the plants and animal origin by the saprophytes। ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो उनका फूड मटेरियल लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इट मे बी ए प्लांट और इट मे बी एनिमल ओरिजिन, एंड दीज आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट। द फंजाई ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल and decaying of plants and animals। ठीक है, the fungi obtaining their organic food from the dead and decaying residues of the plants and animals origin is called as saprophytes। These fungi grow on the rotten fruits। ये जो फंजाई होती है वो rotten fruits पे ग्रो होती है। मैंने आप लोगों को जब हम लोग पीपीटी देख रहे थे, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिखाए थे कि जिस फ्रूट्स पे ये फंजाई ग्रो हुई थी। रॉटन फ्रूट्स यानी सड़े हुए जो फ्रूट्स हैं उस पे ग्रो होते हैं फंजाई। रॉटन वेजिटेबल्स, देन मॉइस्ट वुड, थोड़ा अगर कोई लकड़ी अगर होती है कि जहाँ पे वो गीली होती है या पे उसका सरफेस पे थोड़ा पानी अवेलेबल होता है, तो ऐसी जगह पे ये सैप्रोफाइट्स ग्रो होते हैं। मॉइस्ट लेदर, जैम्स, जेलीज, डेब्रिज, मॉइस्ट ब्रेड्स एक्सेट्रा, ये सभी कंटेंट पे ये सैप्रोफाइट्स ग्रो होते हैं। देयर माइसेलियम में बी एक्टोफिटिक और एंडोफिटिक। माइसेलियम जो होता है वो एक्टोफिटिक होता है या फिर एंडोफिटिक होता है। एक्टोफिटिक मींस फ्रॉम आउटर साइड एंड एंडोफिटिक फ्रॉम द इनर साइड। यानी माइसेलियम हमें पता है द बॉडी ऑफ फंजाई विच इज मेड अप ऑफ द थिन फिलामेंटस हाईली डेलिकेट स्ट्रक्चर। जो इसमें बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, तो ये फिलामेंट जो रहेंगे वो फिलामेंट एक तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल के बाहर से प्रेजेंट रहेंगे, या फिर वो अंदर तक भी पेनिट्रेट हो सकते हैं। दे मे बी ऑब्लिगेट और द फैकल्टेटिव। दे हेल्प इन द साइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं सैप्रोफाइट्स। मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज करने का काम सैप्रोफाइट्स करते हैं। दे कॉमनली ग्रोइंग sapros, the commonly growing saprops are Mucor, Rhizopus, Penicillium, then Saprolagnia। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सैप्रोफाइट्स के, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, सैप्रोलेंजिया एक्सेट्रा। Symbionts. Now, what is this symbiont? Some of the fungi have the symbiotically in association with the other plants where they are mutually benefited to each other। सिम्बायोन्ट्स का मतलब मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया था,
the organism, two different partners which are living in association is called as symbionts. Such a relationship is called as symbionts, and they are participating in the organism called as symbionts. Lichens and the mycorrhiza, it is the best example of symbionts. Lichens, it is in association with the alga and fungus. These two organisms remain in associated together so that they appear to be single plant. लाइकेन के केस में अगर हम देखते हैं तो लाइकेंस, द ऑर्गेनिजम्स लाइकेंस, इट इज द एसोसिएशन ऑफ द अल्गी एंड फंजाई. अल्गी और फंजाई को मिला के जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हें हम लाइकेंस कहते हैं. सच एसोसिएशन इज अ म्यूचुअलिज्म, यानी जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे, किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से किसी को परेशानी नहीं है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं. The algal partner is called as a phycobiont, while the fungal partner is called as a mycobiont. In association, the fungal partner absorbs the water, minerals, and a supply to algae. And in return to this, the algal partner prepare the food utilizing water, CO2, and light, and in turns some amount of food supply to the fungal partner. यहाँ पे क्या होता है लाइकेंस के केस में, algae जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फूड मटेरियल फंजाई को सप्लाई करती है. उसके बदले में फंजाई जो होती है, ठीक है, उसके बदले में फंजाई इट हेल्पफुल इन द ऑब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होती है. देन द फंगल पार्टनर mycobiont belongs to the Ascomycotina, Basidiomycotina and rarely of the Deuteromycotina, ठीक है. फंगल पार्टनर जो होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं अलग अलग कैटेगरी को फंजाई के, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड रेयरली ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटिना. Algal partner, that is the phycobiont, is unicellular and rarely the filamentous. About 75% of lichen thallus contain the chlorophycean green algae, example the Tribouxia. Few lichen thallus have the cyanobacteria, for example the nostoc, Anabaena, Rivularia, etc. तो अल्गल कंपोनेंट जो होता है वो अल्गी के क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है इन केस ऑफ लाइकेंस. नाउ द माइकोराइजा, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद रूट्स ऑफ द सर्टेन सीड्स बियरिंग द प्लांट्स कॉल्ड एज अ माइकोराइजा. यानी माइकोराइजा मतलब क्या होता है कि फंजाई जो होती है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, एंड दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजा. दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ फंगस रूट्स. It was discovered by the German botanist Frank in 1885. The types of mycorrhiza, there are maybe two major types, ectomycorrhiza and endomycorrhiza. Ectotrophic mycorrhiza, when the well-developed fungal hyphae covers the root surface externally and form a mantle around the roots, it is called as the ectophytic or the ectotrophic mycorrhiza or the ectomycorrhiza. जब फंजाई जो होती है रूट्स के आउटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होती है, ऐसे फंजाई को हम लोग एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं. एज अ रिजल्ट द सीड प्लांट शो द ग्रेटर विगर एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ दिस फंजाई. इट इज मोर कॉमन ऑन द रूट्स ऑफ पाइनस, मोनोट्रोपा एंड यूकेलिप्टस. पाइनस हमें पता है जिम्नोस पर भी प्लांट होता है. तो देखो यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज द रूट, ठीक है, एक रूट है ये, और उस रूट के आउटर सरफेस पे आपको फंगल फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आउटर सरफेस पे, ठीक है. द फंगल फिलामेंट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द आउटर सरफेस. एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है उन लोगों ने वहां पे. द फंगल मैंटल इज प्रोड्यूस. ये देखो, दिस इज अ टीएस, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट शोइंग द एक्टोमाइकोराइजा. ये टीएस लिया है, ये बहुत सारी सेल्स है रूट्स की, लेकिन देखो आप लोगों को फंगल फिलामेंट जो है वो सिर्फ बाहर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंडोमाइकोराइजा के केस में, तो फंगल फिलामेंट जो है वो सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट हो चुके हैं और वहां पे ग्रो हो गई है, ठीक है. तो ये हो गया एंडोमाइकोराइजा और ये हो गया एक्टोमाइकोराइजा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेल्स है इसके अंदर फंगल फिलामेंट नहीं आए हैं, ठीक है. यहाँ पे फंगल फिलामेंट सिर्फ बाहर से ही प्रेजेंट है. सो द एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा देखते हैं. व्हेन द फंगल फिलामेंट्स ऑफ द माइसेलियम एंटर्स द रूट्स एंड स्प्रेड within the cortex, it is described as the endophytic or endotropic mycorrhiza or the endomycorrhiza. जब फंजाई सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है तो उसे हम लोग एंडोमाइकोराइजा कहते हैं. द फंगल माइसिलियम वेरी रेयरली ग्रोज ऑन द रूट सरफेस. फंगल माइसिलियम जो होता है
वो रेयरली ग्रो होता है ऑन द रूट सरफेस। द इंटरनल फंगल माइसिलियम मे बी इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर। देखो यहाँ पे ये भी बताया इन लोगों ने कि अंदर तक जो माइसिलियम जाते हैं या फिर फंजाई जाते हैं वो डायरेक्टली सेल के अंदर ही नहीं जाते हैं। तो अगर सेल के बीच में रहते, दो सेल के बीच में अगर रहते हैं तो उसे हम इंटरनल और वी कैन कॉल इट एज अ इंटरसेल्युलर, ठीक है, उन्हें हम इंटरसेल्युलर कहेंगे। और अगर सेल्स के अंदर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर, और सेल के अंदर अगर जाते हैं तो हम उसे इंट्रासेल्युलर फंजाई कहेंगे। इट इज कॉमन ऑन द रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। एग्जांपल दिया है यहाँ पे उन्होंने, इट इज कॉमन ऑन द रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज VAM. VAM, it is related with this mycorrhiza. Now what is this VAM? Vesicular arbuscular mycorrhiza. When the mycelium is intracellular, it produces the haustoria-like projections which penetrate into the cortical cells of the root. यानी रूट्स के सेल्स जो है, रूट्स की सेल्स, ये वाली जैसी जो सेल्स है, इन सेल्स के अंदर तक अगर फंगल फिलामेंट जाते हैं और वहां पे ऐसे वेसिकल, ठीक है, यानी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसे वेसिकल जैसे या फिर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न अगर बनाते हैं, तो उसे आर्बस्कल कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलर स्ट्रक्चर को वेसिकल कहते हैं और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को आर्बस्कल कहते हैं। When the mycelium is intercellular, it produces the haustoria-like projections which penetrate into the cortical cells of roots. Inside the root cells, these projections either swells into the button-like vesicles. ये button-like vesicles आपको दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये जो फिलामेंट रहेंगे उस फिलामेंट पे सर्कुलर फॉर्म में बलून जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसे हम कहेंगे वेसिकल्स फ्रॉम द प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. This intercellular cluster of branch hyphae is called as the arbuscle. जो ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा तो उस ब्रांच स्ट्रक्चर को हम लोग arbuscle कहेंगे. The endomycorrhiza which produces the arbuscles are called as a vesicular arbuscular mycorrhiza. यानी endomycorrhiza के केस में, अगर किसी माइकोराइजा के केस में सेल्स के अंदर ऐसे वेसिकल्स बनते हैं, यानी ऐसे सर्कुलर बबल्स बनते हैं और ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न अगर बनते हैं तो उसे हम आर्बस्कल कहते हैं। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलता है किसी प्लांट के सेल के अंदर, in case of the endomycorrhiza, it is called as a vesicular arbuscular mycorrhiza. They enrich the soil with the nutrient and help in the increase in the soil fertility. Soil fertility बढ़ाने के लिए help करते हैं. Now, in case of the reproduction, the process of formation of daughter individuals from the parent is called as a reproduction. बेसिकली अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द फंजाई, फंजाई के केस में जो रिप्रोडक्शन होता है, सबसे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल बनने की जो प्रोसेस चलती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय द टू मेथड्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो मेथड से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट है हम लोगों ने इसके पहले जो पीडीएफ देखा था वहां पे देखा था कि दैट रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द फंजाई इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स की हेल्प से होता है व्हिच इज द पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स सम द पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In case of the sexual reproduction of fungi, there is a presence of positive and a negative strains, ठीक है। वहाँ पे positive strains होती है, negative strains होती है. These positive and negative strains are involved in case of the sexual reproduction of fungi, ठीक है। तो fungi के केस में ये पॉइंट हम लोगों ने अभी आज देखे हैं. Just we take the revision of this topic. So in the previous lecture we have discussed the general characteristics of fungi, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़े हम लोगों ने. लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई. इन दिस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई we have discussed the mycelium. Now what is this mycelium? That is the highly delicate the body of fungi. It is made up of highly delicate thin filamentous network like structure of fungi. It is called as a mycelium and it consists of the hyphae. Single filament of mycelium is called as hyphae. This hyphae may be septate or aseptate. hyphae जो होती है वो तो septate रहेंगी या फिर aseptate रहेंगी, ठीक है। Then the aseptate
मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी जो होती है उस हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। Then later on we have discussed the ultra structure of fungal cell. ठीक है, हम लोग आज ultra structure of fungal cell वहाँ पे डिस्कस किया. That ultra structure of fungal cell, first of all they told us that the fungal cell it is made up of it is look like the eukaryotic cell. Eukaryotic cell की जैसे दिखती है. क्यों eukaryotic cell की जैसे दिखती है? Because it consists of the fully developed structures. Means it consists of the fully developed nucleus. The nucleus is present in case of the fungi. Fungi के केस में fully developed nucleus present होता है. इसीलिए इन लोगों ने इसको यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा है. Later on, they named it as it is fully developed cell because it consists of the important cell organelles, for example, the mitochondria, endoplasmic reticulum, then Golgi complex, lysosomes, dictyosomes, ribosomes, vesicles, microtubules. All these contents which are present in the normal fully developed cell, these content are present in case of the fungal cell. तो यही कंटेंट जो है वो फंगल सेल के केस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के साथ इसे कंपेयर किया है. मेन चीज जो है फंगल सेल के केस में कि ये सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन या फिर फंगल सेलुलोज से बनी हुई रहती है. दूसरी चीज ये कि फंगल सेल के अंदर प्लास्टिड्स या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है, नो एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द फंजाई. सो नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिड्स के रिलेटेड इन्होंने एक पॉइंट बताया कि रेडिश वॉलेट पिगमेंट प्रेजेंट होता है सर्कोस्पोरा स्पीसीज के केस में. उसको नाम दिया था न्यू सर्कोस्पोरिन, बट इट इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. जेनेटिक मटेरियल होता है फंजाई के केस में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल. फंगल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आपको ड्रॉ करना पड़ता है जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है. राइट इन नोट ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल, दैट इज द डिक्टियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, cytoplasmic vesicles, cell wall, vacuole, nucleus, ribosomes, microbody, etc. In mode of nutrition, it is the different types. That is the parasitic, hyperparasitic, saprophytic, and symbiotic conditions. Then we have discussed the saprophytes, then symbionts, then lichens, then mycorrhiza we have discussed. So this is all about the part of our topic. Now all of you have to go in your chat box. अभी आप लोग अपने chat box में जाएंगे and write down there your name. आप लोग अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे और present करके एक वर्ड लिखेंगे. So इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, we will going to discuss the classification of fungi and economic importance of fungi. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम लोग फ्राइडे सैटरडे में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में पुराना हुआ दिया है, लेकिन हमें अभी नया वाला क्लासिफिकेशन फॉलो करना है. दैट इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय अलेक्सोपोलिस एंड विम्स 1996 वाला. ठीक है, आपके नोट्स में अगर पुराने होंगे तो वहाँ पे 1979 वाला क्लासिफिकेशन होगा. इट इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड योर थ्योरी एग्जामिनेशन. ठीक है, थ्योरी एग्जामिनेशन की हिसाब से वो वैलिड नहीं है. 1996 वाला जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. Definitely I will provide you the classification of fungi and later on we will going to discuss
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो जैसे ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई खत्म हो जाते हैं तो हम लोग वो 4 स्पीसीज देख लेंगे। सबसे पहले अल्ब्यूगो, उसके बाद में अल्ब्यूगो, देन पक्सिनिया, देन सर्कोस्पोरा, and one of them that is अल्ब्यूगो, पक्सिनिया, सर्कोस्पोरा एंड द म्यूकर। ठीक है, म्यूकर के बारे में, इन 4 स्पीसीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे और डिटेल में स्टडी करनी पड़ेंगे हमें इसकी, तो हम थोड़ा फास्ट लेंगे और later on we will move toward the next unit that is mushroom cultivation. So I think that's all for today. आज के लिए बस इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं। बाकी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ और सब लोगों को बाय।